Hi guys, this is Tanya. Welcome back to my channel. I think you understood what is the topic of today's video. Yeah, what is the difference between yoga and other exercise, or as you can say, what is yoga and basic rules and some regulation before start the yoga. So yeah, so before going to start the video, I just want to tell you, if you found me new in YouTube, so please subscribe my channel. If you found this video helpful, then just give thumbs up and share with your family and friends. So yeah, don't wasting the time. Let's get started. So yeah, I don't want to forget the main point, so that I already noted. Yeah, so what is the yoga, right? So some people are asking why should I go for yoga? I can do exercise at home, I can go gym. Yeah, you can go, it's normal. But what is the yoga means? You can get the physical fitness from any exercise. If you going to gym, from there you can get the physical fitness as well. Just you can maintain your weight, everything. So you can find a lot of celebrities are going to gym. Means every celebrities has to go gym for their personal reason and profession reason also. So but beside that, lot of celebrities are practicing yoga also. You can find that. So what is the yoga? Yoga can give you the mental satisfaction, mental fitness also, as well as physical fitness, which can't get from gym or another exercise. Okay, so that yoga is full, means full beneficial for your body and mind and your health, entire health. If you are going to gym, there you just maintaining your body parts. But if you are practicing yoga, you don't need to go gym, or you don't need to practice another exercise, because from the yoga you can get your health benefit and also your body fitness and also your mind fitness. What is a mind fitness? You can say sometimes you are feeling too much stress, depression. So you little words make you irritated. So that is the things, your mind is not calm. So you have to make your mind first calm, and as well as your body also. So that you can get from the yoga. So that is the difference. Basically, yoga can give you mental satisfaction as well as physical satisfaction and fitness. So that's why you should start yoga. And before going to start, some rules or regulation अबाउट योगा यू हैव टू फॉलो. योगा करने से पहले आपको ये कुछ रूल्स आपको मेंटेन करना है, जो कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि हाँ आपको ये करना ही है उसके बाद ही आप योगा कर सकते हैं. ये आपका मतलब आपके ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं कि आप ये मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे. पर मेरे हिसाब से अगर आप ये रूल्स और रेगुलेशन थोड़ा फॉलो करेंगे तो आपका जो बेनिफिट होगा, आपका बॉडी के जो भी इनर पार्ट्स है वो आपके वो बेनिफिट्स लेने के लिए फुल्ली तैयार रहेगा. तो इसीलिए मैं ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और हाँ, मैं यहाँ पे नोट कर लिए है ताकि मैं कोई पॉइंट बताने में भूल ना जाऊँ. तो या तो योगा आपका जो भी है वो
आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन और फिज़िकल सेटिस्फेक्शन दोनों एक साथ देंगे, जो कि आप जिम में जाके या फिर घर पे कोई अदर्स एक्सरसाइज करके आपको नहीं मिल सकता है। आपको कोई आपके जो बिज़ी लाइफस्टाइल है वहाँ पर आप बहुत ही स्ट्रेस हो जाते हैं। इनफैक्ट हम हाउसवाइफ भी बहुत स्ट्रेस फील करते हैं कभी कभी। बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं या फिर डिलीवरी के बाद ह्यूमन को बहुत सारा स्ट्रेस और डिप्रेशन आते हैं। तो इन लोगों के लिए योगा बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। और जो लड़के लोग हैं उन लोग को ऑफिस में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, फिर घर पे आके घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम देना, फिर जो भी है उसमें भी एक उनको स्ट्रेस डिप्रेशन आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको योगा करना है। योगा करने से ये सब कुछ आपको बेनिफिट देगा, ये सब कुछ रिलैक्स करेगा। तो मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व की है और खुद मैं ये बेनिफिट मुझे मिला है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं हिंदी में शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको किसी को भी कोई समझने में दिक्कत है, आप यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मैं रूल स्टार्ट करती हूँ। आप योगा जब कर रहे हैं तो योगा करने से पहले आपको हाफ बाथ लेना है। हाफ बाथ मतलब आप अपना चेहरे को और जो हैंड्स और लेग को आप थोड़ा सा धो लीजिए, तो इसको कहते हैं हाफ बाथ। ठीक है, ये करके आप योगा करने बैठेंगे तो खुद को एक अंदर से आपको फ्रेशनेस फील होगा। तो वो आप ऐसे फील करेंगे तो योगा जो करेंगे आप उसमें भी आपका मन लगा रहेगा और आप उसका बेनिफिट भी आपको अच्छे से मिलेगा। तो दूसरा जो है, आपको फ्रेश एयर में योगा प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आप एसी ऑन कर दिए हैं या फिर आप कूलर ऑन करके आप योगा कर रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि योगा आपको नेचुरल एयर में करना है। या तो आप पंखा चला के कीजिए, या तो फिर अगर आप ओपन सरफेस पे कर रहे हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो नेचुरल एयर है उसमें आप कर सकते हैं। पर एसी कूलर ये सब चला के मत कीजिएगा, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, वर्कआउट का या योगा का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप बॉडी से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो घटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टॉक्सिन है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप एसी चला के अपने बॉडी को कूल भी करना चाहते हैं, तो कैसे फ़ायदा मिलेगा आपको? तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और उसके बाद जो पॉइंट है, आप योगा करेंगे तो आपको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये सब अवॉइड करना है। अगर आपका इनर बॉडी का जो इनर पार्ट्स है वही आपके बेनिफिट लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा, तो आप योगा करके आप क्या करेंगे, या फिर कोई भी एक्सरसाइज करके आप क्या करेंगे? तो इसलिए आपका बॉडी को पहले रेडी करना है। आपका बॉडी में जो भी, मतलब आपने ऑलरेडी आपका बॉडी का जो इनर पार्ट्स है उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर चुके हैं। जैसे कि आप स्मोक कर रहे थे या ड्रिंक कर रहे थे, तो आप अगर वो कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आप कितना भी योगा कीजिए, कितना भी एक्सरसाइज कीजिए, वो आपका बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत ये रूल्स भी फॉलो कर लीजिए। आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। आप पहले एकदम से ना कर पाए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप ट्राई कीजिए। उसके बाद जो है वो जो ड्रेस, एक्सरसाइज का जो ड्रेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो योगा करने के टाइम आप थोड़ा कंफर्टेबल वेयर पे पहनना कीजिए। जैसे कि आप स्ट्रेचेबल एक पैंट पे पहनिए और ऊपर एक टॉप या फिर कोई कुर्ता भी आप पहन सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप अगर योगा करते समय अगर ऐसे ढीला ढाला कोई सलवार पहन रहे हैं तो या साड़ी पहन रहे हैं, तो आपका मतलब ध्यान सिर्फ उस कपड़े में रहेगा कि मेरा कहीं से ये कपड़ा फिसल तो नहीं रहा है, कहीं ये मतलब खिंचाव महसूस तो नहीं हो रहा है। तो फिर आप वो जो योगा या एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो जो कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है एक एक्सरसाइज या योगा करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई रहे, क्योंकि तभी जाके आपका हेल्थ में वो बेनिफिट लाएगा। तो
आप अगर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाएंगे आप क्या कर रहे हैं, आपका जो भी आप ब्रीथ ले रहे हैं, तो उसमें अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा वो एक्सरसाइज या योगा करने का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपको योगा किसी ब्लैंकेट और मैट में बैठ के करना है, ना कि खाली फ्लोर में करना है, क्योंकि उसमें आपका हाथ फिसल सकता है, पैर फिसल सकता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है। इसलिए आपको मैट या ब्लैंकेट जो आपका फ्लोर से फिसलेगा नहीं, तो ऐसा वाला कोई मैट या फिर ब्लैंकेट आप यूज़ कर सकते हैं योगा या एक्सरसाइज करते समय। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, आप जब योगा करते हैं ना, तो आप जब फर्स्ट मतलब आपका ब्रीथ स्टार्ट होना है लेफ़्ट साइड से और एंड भी होना है आपका लेफ़्ट साइड से, तो तभी आप एक आसना या प्राणायाम आप कर सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप जो सांस ले रहे हो ना, उसी से आपका हेल्थ में बेनिफिट आते हैं। योगा का यही एक पॉइंट है, हम नॉर्मल टाइम पे जो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, उसमें हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं, पर योगा करते समय वो करते हैं, इसीलिए वो हमारे शरीर में बेनिफिट देते हैं। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का जो मतलब जो कमी रहता है वो ठीक ठाक रहते हैं। तो इसीलिए योगा हेल्थ में बेनिफिट ऐसे ही बेनिफिशियल होते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है फूड। मतलब आप योगा कर रहे हैं और मतलब बाहर जाके ये पेस्ट्री खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मतलब आपका वही लाइफस्टाइल है, आप कभी भी रेस्टोरेंट जाके ये ऑयली फूड खा रहे हो, वो खा रहे हो, ऐसे आप योगा करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तुरंत वो सब छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं तो आपको वो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो टाइम दीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए उसके लिए कि आप उसको मतलब अवॉइड कर सको। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना घर का बनाया हुआ खाना वो खाने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा मतलब ऑयली स्पाइसी फूड होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो वेज फूड खाइए, नॉन वेज ज़्यादा मत खाइए। वैसे तो जो लोग परफेक्ट योगी हैं वो बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो वेज खाने के लिए ही रिकमेंड करते हैं। तो अगर आपका नहीं हो सकता तो आप मतलब जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए, वेज फूड खाने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि खाना, डाइट और हेल्थ दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आप जैसा खाओगे आपका बॉडी वैसा ही आपके साथ बेनिफिट देगा और वैसे ही ट्रीट करेगा। तो आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर डाइट का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है आप आपका जो बॉडी पार्ट्स का जॉइंट्स होता है ना, उसमें वहाँ पे जो हेयर होता है वो आप बिल्कुल भी कट मत कीजिए। ये मतलब जो लोग परफेक्ट योगी है, आप बाबा रामदेव को ही देख लीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बाबा रामदेव बन जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपका हो सकता है, आपको आप कंफर्टेबल फील करते हो तो ही आप उसको छोड़ो, वरना आप जैसे खुद फिट रहना पसंद करते हो या फिर आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसा ही करो, ये नेसेसरी नहीं है। और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आपका जो नेल्स होता है वो आपको शॉर्ट रखना है। मतलब आप ऐसे आप नाक को पकड़ के आप प्राणायाम कर रहे, तो आपका नाखून अगर आपका नेल्स अगर इतना बड़ा रहेगा तो आपको कहीं पे भी मतलब खरोच आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए योगा या एक्सरसाइज जब कर रहे हो ना, आपका नेल्स को कट कर लेना चाहिए या शॉर्ट रखना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है, खाने के बाद आप योगा मत कीजिए, क्योंकि फुल बेली में कुछ आसना आप करेंगे ना तो उसका आपका उल्टा ही बेनिफिट देगा, तो उल्टा ही असर हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत प्रेशर महसूस होगा, जिससे आप वॉमिटिंग भी कर सकते हो। तो इसलिए फुल बेली में आप योगा मत कीजिए। आप मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के थोड़ी बहुत योगा कर लीजिए, थोड़ा पानी पी के। उसके बाद आप
ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। या तो फिर आप जब शाम के टाइम थोड़ा सा रेस्ट लेके आप उठ रहे हैं तो थोड़ा सा तब फ्रेश हो जाइए, फिर पानी पी के फिर थोड़ी देर बाद आप योगा कर लीजिए। उसके बाद आपको टिफ़िन, इवनिंग स्नैक्स या चाय जो भी पीना है आप कर सकते हो। बट योगा करते टाइम ना चाय पीना भी अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, चाय और कॉफ़ी, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होते हैं ना। तो आप योगा कर रहे हैं आपका बेटर स्लीप के लिए, पर आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो कैसे आप अच्छे से स्लीप ले पाएंगे, आप अच्छे से सो पाएंगे? नहीं होगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ ना आपको फॉलो करना चाहिए। और मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अभी तुरंत वो फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर उसमें पूरा हैबिट आपका हो चुका है तो वो मतलब बदलने में आपको थोड़ा टाइम देना होगा, पर आपको ज़रूर कोशिश करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है, आप जब आसना प्राणायाम ख़त्म कर रहे हैं उसके बाद आपका बॉडी के फुल पार्ट्स जो फेस, हैंड और फीट या बॉडी, तो वो थोड़ा सा आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे से होगा और जो भी हेल्थ बेनिफिट है वो अच्छे से आपको मिलेगा। तो उसके बाद जब आप वो मसाज भी फिनिश कर रहे हैं ना, तो उसके बाद आप तुरंत लेट जाइए आपके मैट पर। तो उसको शवासना बोलते हैं। तो आपको फिनिश ऐसे ही करना है शवासना में जाके। तो वो शवासना में आप जाने के बाद आप 1 से 2 मिनट तक ऐसे आंखें बंद करके आप थोड़ा सांस ले सकते हैं, और उस सांस को आपको फील करना है। आपको मतलब उस सांस पे कंसंट्रेट करना है, तभी जाके आप पूरा जो सीक्वेंस या जो एक्सरसाइज उस दिन का किए हैं तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ और एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि योगा करने के टाइम अगर आपका मतलब पीरियड चल रहा है, लड़कियों के लिए मेंस है, तो उस टाइम पे आप योगा मत कीजिए। बट मेडिटेशन प्राणायाम आप कर सकते हैं। बट योगासना प्रैक्टिस मत कीजिए पीरियड के 4 से 5 दिन तक। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक बात आता है कि आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आज आपका बहुत बिजी शेड्यूल गया है, तो आप कहा कि मैं बहुत थकी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आज नहीं होगा, तो कल देखेंगे। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि योगा या एक्सरसाइज आप किसी भी सेलिब्रिटी को मतलब जाके पूछ लीजिए, देख लीजिए, वो लोग अपने आप को फिट रखने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं एक्सरसाइज या योगा करके। वो लोग कभी भी स्किप नहीं करते, क्योंकि वही उनका लाइफस्टाइल है, वही उनका रूटीन है। तो इसी को भी आपको आपका शेड्यूल में रूटीन बनाना है कि आपको ये इतने टाइम तक, अगर आपको पूरे 1 घंटा आप नहीं ले सकते तो मत लीजिए। आप अगर 20 मिनट ले सकते हैं तो 20 मिनट ही लीजिए। हर एक दिन आप एक टाइम रखिए 20 मिनट का, जहाँ पर आप ये योगा प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसा आपको बनाना है। आप देखेंगे कि आप 1 हफ्ता किए हैं, उसके बाद 2 दिन आप नहीं किए हैं, फिर आप स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे आपका वो जो पहले वाला फ्लेक्सिबिलिटी था वो चला गया है, या फिर आपका फेस पे, बॉडी पे जो एक चेंजेस आप मतलब फील किए हैं वो आप नहीं दिखोगे। तो ऐसा ही आपको रूटीन मेंटेन करना है। योगा या एक्सरसाइज जो भी करो, आप छोड़ दोगे तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप रेगुलेटरी मेंटेन कीजिएगा। तो यही है योगा का कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपको फॉलो करके उसके बाद मतलब इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होके उसके बाद आप योगा स्टार्ट कर सकते हो। और आई होप कि योगा का और एक्सरसाइज का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शायद बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको जानना हो, और तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, तो कि मेरा आने वाला वीडियो